Hello children, welcome to your maths video class. Children, in maths we are doing activity worksheet 11 and we have completed all the questions. Only one question is left, except one we have completed all. Children, I hope this measurement topic is clear to you. Measurement of length, measurement of weight and measurement of capacity. ये तीनों हमने किए हैं chapters 10, 11, 12 measurements related, and I'm sure the concept is clear to you. Even if there is anything left, अगर अब कुछ ऐसा है जो आपको नहीं समझ में आया है, you can ask me in online class, or when you come to school you can clear all your doubt if you have any doubt related to these measurement topics. Okay. In today's video we'll be completing the last question, and then I'll give you some extra question related to measurement, very basic question, just to confirm that your concept is clear. इसको एक बार हम चेक करेंगे थ्रू सम वेरी इजी, वेरी बेसिक क्वेश्चंस रिलेटेड टू डेली लाइफ. Let's finish the last question first. Question number 5 of activity worksheet that is given on page number 139. Question number is 5. Let me write this maths. Okay, question number is 5. How much is left? How much is left? This is the question. A is 250 ml minus 120 ml. Here you have to subtract this. Okay, so 0 minus 0 is 0, 5 minus 2 is 3, and 2 minus 1 is 1. So 130 ml left. When we take away 120 ml from 250 ml, what we will get? We will get 130 ml. So when the question is how much is left, you will say 130 ml is left. Next is 70 centimeter minus 38 centimeter. Children, one thing you must have noticed that unit is same. ये हम शुरू से करते आ रहे हैं. जब भी हमने मेजरमेंट किया है मैंने इसी चीज़ को ज़्यादा स्ट्रेस किया है कि आपको यूनिट सेम रखना है. ओके, so from centimeter you have to subtract centimeter. Now here is 0, 0 minus 8. From 0 you cannot take away 8, so you will take 10 from here. So this is 10, this is 6 tens. 10 minus 8 is 2, 6 minus 3 is 3. So 32 centimeter. What is left? How much is left? 32 centimeter is left. Then we have 798 gram minus 687 gram. Let's subtract this also. इसको भी सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं. ओके, 8 minus 7 is 1, 9 minus 8 is 1, 7 minus 6 is 1. So 111 gram left. So 3 questions were there, 3 sums were there in question number 5. Now I'll give you some extra questions based on measurement. Okay, let me erase this first. Okay, question is, mention the units that you will use to measure
following things. ओके अब जो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ों के नाम लिखने वाली हूँ, आपको बताना है कि आप उसे किस यूनिट में मेजर करेंगे. ओके, फर्स्ट वन इज़ योर नोटबुक, लेंथ ऑफ योर नोटबुक, लेंथ ऑफ योर notebook. Okay, length of a ladder. Ladder मतलब जो सीढ़ी होती है ना, वो length of a ladder. Then length of length of your study table. Okay, length of your pencil box. Length of bed sheet. ओके, पहले इनको देख लेते हैं, लेंथ के कर लेते हैं. लेंथ ऑफ योर नोटबुक, आपकी जो कॉपी है जिसमें आप लिख रहे हैं उसका जो लेंथ है वो आप किस में मेजर करेंगे, सेंटीमीटर में या मीटर में? डेफिनेटली सेंटीमीटर में, है ना. नोटबुक तो इतनी बड़ी होती नहीं है. लेंथ ऑफ ए लैडर, जो सीढ़ी होती है, जो बांस वाली सीढ़ी होती है, बैम्बू की सीढ़ी होती है, या जो लोहे की सीढ़ी बनाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड लैडर. वो उसको किससे मेजर करेंगे? मीटर में. यस, मीटर में. देन वी हैव ओके लेंथ ऑफ योर स्टडी टेबल, जो आपका स्टडी टेबल है वो मीटर में. Just a second. The question was, yes, length of your study table. मीटर हो गया. Length of your pencil box. Yes, length of your pencil box. पेंसिल बॉक्स कितनी भी बड़ी होगी तो मीटर में नहीं होगी, वो हमेशा किस में होगी? सेंटीमीटर में. लेंथ ऑफ बेडशीट, जो चादर बिछाते हैं बेड पर, वो मीटर. तो ये हो गया लेंथ से रिलेटेड. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट. ये सब बिल्कुल आपके घर के आसपास जो चीज़ें हैं उसी को, या आपके घर में जो चीज़ें हैं उसी से रिलेटेड है. ठीक है. नेक्स्ट इज वेट ऑफ अ बोल ऑफ शुगर. ओके, वेट ऑफ योर lunch box. Weight of your father. Weight of your bed. And weight of a spoon, simple spoon. चलिए, एक कटोरी चीनी,
एक कटोरी चीनी का क्या वेट होगा? एक कटोरी चीनी का क्या वेट होगा? ग्राम में होगा, है ना। इसको जी लिख सकते हैं या फिर आप ग्राम भी लिख सकते हैं। वेट ऑफ योर लंच बॉक्स, जो आपका लंच बॉक्स है, टिफ़िन बॉक्स है, कितना भी आप भरेंगे तो किलोग्राम में नहीं आएगा, है ना, तो इट इज़ ऑल्सो ग्राम। वेट ऑफ योर फादर, आपके पापा का क्या वेट होगा? ग्राम में? नो, किस में होगा? किलोग्राम में, है ना, किलोग्राम, केजी। देन वेट ऑफ योर बेड, जो आपका बेड है, कितना भी छोटा होगा तो वो किलोग्राम में ही होगा, है ना, बेड भी किलोग्राम में होगा। वेट ऑफ अ स्पून, एक चम्मच, चम्मच का क्या वेट होगा? ग्राम, यस। ओके, ये आपके जो बिल्कुल क्लोजेस्ट चीज़ों के हमने नाम यहाँ पे लिखे हैं। नेक्स्ट कमिंग टू, अब लिक्विड की बारी आती है। A cup of tea, a bowl of soup, a bucket of water, a tank of water, a packet of juice, a mug of milk। अब चलिए इसको भी हम देखते हैं कि ये लीटर में है कि मिलीलीटर में होगा ये सब चीज़ें। अ कप ऑफ टी, एक कप जो चाय होती है वो लीटर में तो नहीं होगी ना, कोई लीटर में तो चाय नहीं पीता है, तो कितना होगा वो? मिलीलीटर होगा। एक कप ऑफ टी इज़ मिलीलीटर। अ बोल ऑफ सूप, एक कटोरी सूप, अगेन मिलीलीटर। अ बकेट ऑफ वाटर, एक बाल्टी पानी पूरा भर के, लीटर। और टैंक ऑफ वाटर, जो पानी की टैंकी होती है वो, उसमें पानी कितना होगा? लीटर में होगा, यस। अ पैकेट ऑफ जूस, जूस का एक पैकेट, छोटा पैकेट है तो इट कैन बी लीटर, इट कैन बी मिलीलीटर, डिपेंडिंग। जो लीटर वाला पैकेट होता है उसमें लीटर आएगा, जो छोटा पैकेट होता है उसमें मिलीलीटर होगा। तो यहाँ पे एल और एम एल दोनों लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल या बिग मेंशन नहीं है, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर स्पेसिफिकली स्मॉल पैकेट या बिग पैकेट नहीं लिखा है तो आप दोनों ऑप्शन लिख सकते हैं कि इट कैन बी अवेलेबल इन लीटर और इट कैन बी अवेलेबल इन मिलीलीटर, दोनों में ये अवेलेबल हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, अ मग ऑफ मिल्क, मिल्क का जो मग होता है उसमें कितना आएगा? अगेन इट विल बी इन मिलीलीटर। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट, विच इज़ हैवियर, विच इज़ हैवियर, कौन सी चीज़ ज़्यादा हैवी है ये आपको बताना है। अ बॉल और अ वुडन बैट, अ बॉल और अ वुडन बैट, अ वुडन बैट विल बी heavier, okay, a bike or a bicycle, which will be heavier? Bike. A bag
full of potatoes or a bunch of flour. एक बैग भर के पोटैटो या एक बंच ऑफ फ्लावर? डेफिनेटली पोटैटोज. पोटैटोज हैवी होंगे. ओके. विच इज which has greater capacity. किसकी कैपेसिटी ज़्यादा है? ठीक है. अ जग और अ ग्लास. जग की कैपेसिटी ज़्यादा होगी या ग्लास की? डेफिनेटली ग्लास की. ये ए है, B and C. Here it is A, B. Okay. And eye drop or a cough syrup. एक आई ड्रॉप की कैपेसिटी ज़्यादा है या एक कफ सिरप की बॉटल की? अब सॉरी, अ बॉटल ऑफ आई ड्रॉप. सॉरी. A bottle of eye drop, a bottle of eye drop or a bottle of cough syrup. A bottle of eye drop or a bottle of cough syrup. Definitely a bottle of cough syrup. उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी. ठीक है. Okay, a bottle of ink or a bottle of juice. किसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी? अ बॉटल ऑफ जूस. क्योंकि इंक तो कितना भी होगा तो इतना बड़ा होगा, लेकिन जूस की बॉटल बड़ी हो सकती है. ठीक है. सो इन दिस वे यू कैन सी द थिंग्स अराउंड यू. यू कैन चेक योर सेल्फ विच इज़ हैवियर, विच हैज़ मोर कैपेसिटी, विच हैज़ मोर लेंथ. इस तरह से करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट मीटर, सेंटीमीटर का, किलोग्राम या ग्राम का, या फिर मीटर और लीटर और मिलीटर का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता जाएगा. चलिए, इसके साथ ही हमारा मेजरमेंट का टॉपिक ख़त्म हो जाता है और अब नए वीडियो से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे. ओके. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.